When is the prelims examination? 24th of 2026. Let's say we are targeting this exam. How many days we have? How many months we have effectively? 8 months, 8.5 months. Am I right? September, October, November, December, 4 and 8.5 months. Now, problem is that the number of people who are clearing prelims, वो number तो fix रहता है. But I have to be in that number. I should be one of the people who will crack the prelims. In the last few years, what I have seen as a mentor, that the people who are cracking prelims, वो number में बहुत सारे अच्छे बच्चे filter हो जा रहे हैं. A lot of good students are filtered in, they are not able to crack prelims. And this frequency was पहले भी था, but this frequency has gone up more. There are two factors. The first is there are two factors. The first factor is यूपीएससी का प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है. पहला है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पैटर्न. इफ यू आस्क मी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम, आई डोंट हैव द आंसर. देयर इज नो वन फिक्स पैटर्न. यूपीएससी के प्रीलिम्स का कोई रियल पैटर्न नहीं है. एवरी ईयर पीपल विल कम विद सम फार्मूला, सम मेथड्स, एंड दे विल से दैट मेथड हैज नॉट वर्कड. एलिमिनेशन राउंड पहले आता था, एलिमिनेशन हैज बीन रिमूव्ड बाय फ्यूअर चॉइसेस. बट माय क्वेश्चन इज सेम, that number of people who are clearing prelims, that number is almost same. वो number तो same है ना. 14,000 15,000 लोग prelims पहले भी निकाल रहे थे, आज भी निकाल रहे हैं. But the good students, many of them, in spite of good knowledge in GS, not able to crack prelims. Knowledge है, आप, you're a good candidate also, you have the basic ability also, talent also, but you're not able to clear the prelims. So you have to understand this process. For me, CSAT is also important. Lot of हम यहाँ ज़्यादा focus करते हैं. We are focusing a lot here. इसका the now uncertainty of pattern का factor क्या है? That number of questions which can be solved by the aspirant, that number has come down. Effective numbers. यानी पहले आप ज़्यादा question लगा पाते थे. That number has come down. Paper relatively was more approachable, more doable. But doable question has come down. पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में मैंने देखा है, the question का pattern बदला है and the number of attempted question has come down. The cutoff has gone up. Sorry, gone down, not up, gone down. So cutoff जैसे 85, 88, 87, 75. 1 year it was 75 out of 200. The cutoff is very less. Not even 40%. तो अब क्या करेंगे? दो चीजें हैं. The more the things change, the more they remain the same. What do? You focus on those areas which you can control. Your static has to be very strong. तो प्रीलिम्स निकालना है, इसको ओवरकम करने के लिए static should be strong. Static का strong करने का मतलब क्या है? Basic NCERTs, concept गलत नहीं होने चाहिए. Your accuracy has to be as high as 90%. आप ज्यादा मत पढ़ो, कम अच्छे से पढ़ो. NCERTs, क्लास में जो काम किया है, एनी नोट्स, आज मैंने क्लास में कुछ डिस्कस किया, उस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए. दैट लेवल ऑफ सर्टेनिटी यू हैव टू ब्रिंग इन द प्रिपरेशन. अदरवाइज सारा मेहनत बेकार हो जाएगा. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स 1 year, इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. स्टार्टिंग द जर्नी अगेन इज वेरी डिफिकल्ट. फिर आप प्लान बी, प्लान सी, ये कर लो, वो कर लो, पीजी कर लो, ये कर लो, ये वाला छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, सारा एग्जाम देना. फिर देन द फोकस इज डाइवर्टेड. Number of people who are actually preparing for the exam seriously, that number
कम हो जाता है, बिकॉज वो प्रोसेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं. द स्टार्टिंग 2 year ऑफ योर लाइफ इज द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ. अभी आपका जो अगले 2 साल का लाइफ है, दैट विल डिसाइड द सक्सेस. अगले 2 साल में अगर नहीं होता है, 3 साल में नहीं होता है, एंड सडनली यू फील दैट ओके कुछ और करते हैं. Now problem is that your investment in the starting का 2 year has been not effective. आपका अभी का जो 2 साल है वो effective होना चाहिए, so that you don't have to repeat the cycle. How do you counter that? Your static has to be strong. आपका primary source, NCERT, newspaper reading, come effective. Make sure that you have very high accuracy in the static area. अगर कोई क्वेश्चन NCERT से आ गया, क्लास नोट से आ गया, वो गलत नहीं होना चाहिए, वो गलत नहीं होना है. 90% एक्यूरेसी. एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे सवाल आया, गलत नहीं होना है. अगर गलत हो रहा है तो इट्स अ ब्लास्फेमी. इट्स लाइक आपने फुल टॉस पर आपने प्लेड कर दिया. फुल टॉस पे छक्का मारा जाता है, एंड यू जस्ट वेट फॉर दैट फुल टॉस टू कम, एंड यू हैव टू इम्प्रोवाइज. 90% एक्यूरेसी होना चाहिए आपका. देयर आर एरियाज, पॉलिटी, इकोनॉमी, जहां आप हाई स्कोर कर सकते हो इफ योर बेसिक्स आर रेडी. अनसर्टेन एरियाज, इवन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी कैन स्कोर हाई. अनसर्टेन एरियाज, एनवायरमेंट, साइंस एंड कुछ ही पूछ सकते हैं. यू कैन कंट्रोल द आउटकम इन दीज एरियाज बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है, कुछ ही पूछ सकते हैं. इवन दो यूपीएससी माइट से दैट इन साइंस, एनवायरमेंट, जनरल टेक्निकल स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बट मेनी टाइम दे आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस आल्सो. वी कांट चेंज दैट. What we can change from ourselves कि हमारा बेसिक प्रिपरेशन अच्छा हो. My preparedness level has to be good, and if the preparation level अगर हमारा अच्छा होगा बेसिक सोर्स में, तो रोक नहीं पाएगा. मैं अपना एग्जांपल बताता हूं. मैंने I have cracked 3 prelims, 3 attempt 3 prelims. कोई जादू नहीं था, प्योर लॉजिक. ज्यादा पढ़ नहीं सकता था, टाइम नहीं था, और ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं था तो कम को अच्छे से पढ़ते थे. एक्यूरेसी वाज हाई. कम सवाल लगाए, इफेक्टिवनेस वाज हाई. एंड इट इज, फिर ये गेम की तरह हो जाता है. तो इसको आप ऐसी होगा, योर स्टैटिक हैज टू बी स्ट्रांग, एंड इस स्टैटिक में डायनेमिक लिंकेज बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा, ऑलवेज आस्क कैन दिस क्वेश्चन कम इन प्रीलिम्स, एंड इफ यस इन व्हाट कैपेसिटी. अगर ये टॉपिक प्रीलिम्स में आ सकता है तो किस फॉर्म में आ सकता है, आर यू रेडी फॉर दैट. आस्क दीज क्वेश्चंस. डोंट जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग. आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, वीपी न्यूज में था, अभी वीपी पे सवाल आया था, वीपी पे सवाल आया था ना, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में था, सवाल आ सकता था उस पे. बहुत सारे यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेन से क्वेश्चन आए, बहुत सारे न्यूज में थे. यू कैन प्रिडिक्ट आल्सो कि हाँ ये न्यूज में था, कॉन्टेक्स्ट ये था. अगर वो टॉपिक ढंग से तैयार है तो आपका अच्छा आंसर लिखोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज दैट ये क्यों आया, why this question is asked in UPSC, do I have linkage with current or not, that part again has to be important. तो ये पार्ट हो गया प्रीलिम्स का, पेपर 1. हमारा फोकस यही है. नाउ वी आर मिसिंग वन बिग पार्ट, सीसैट. इसकी तैयारी थोड़ा पहले शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सीसैट लिटिल अर्ली इफ यू आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर. इसके लिए स्ट्रैटेजी से कम चलना पड़ेगा, रैंडम नहीं हो सकता है. बिकॉज सीसैट is one area where UPSC को क्वालिफाइंग ही चाहिए, but can you qualify the qualifying paper? Can you qualify the qualifying paper? ये सवाल अपने आप से पूछना होगा. मैथ्स है, रीजनिंग है, यहां पे भी अगेन वी हैव टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी. लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू क्रैक देम, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल ऑल्सो, क्या हम क्रैक कर सकते हैं. तो हमको इस पर बेटा भी फोकस करना है. वी आर फोकसिंग अ लॉट हियर एज एन इंस्टीट्यूट ऑल्सो, हम टेस्ट करवा रहे हैं, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं, बट हियर इसके लिए भी स्ट्रैटेजी डेवलप करना होगा. एंड आई एम ऑलरेडी थिंकिंग ऑन दैट, बिकॉज लास्ट ईयर ऑल्सो मेरे कई अच्छे बच्चे जो मुझे लगता था प्रीलिम निकल सकता था, उनका नहीं निकला. एंड आई वाज श्योर ऑल्सो कि निकल सकता है, मतलब श्योर इन द सेंस की प्रोबेबिलिटी इज हाई. फिर वो डीमोटिवेट हो गए. अगेन थोड़ा सा रीओरिएंटिंग द प्रोसेस एंड डिफाइंग कि मेरे लिए कैसे वर्क करेगा, एंड मी मोर इफेक्टिव ऑन दैट. प्रीलिम्स निकलेगा तब तो मेंस दोगे, प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो मेंस दोगे. मेंस तो करना ही है, बट प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं लेना है. प्रीलिम्स विल डिसाइड, प्रीलिम्स लाइक अ एंट्री टिकट. अच्छा, प्रीलिम्स इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिकॉज इट इज
मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर गिविंग प्रीलिम्स, पहली बात. सेकंड, इट इज कॉम्पिटिटिव. थर्ड, इट इज अनसर्टेन. फोर्थ, you get the best crowd here in the prelims itself. अच्छा, मान लो अच्छा crowd prelims में filter हो गया. Let's say I'm good in answer writing, I'm good in optional, I'm very good in essay. But मेरा prelims निकला, तो I'm out of the competition. Competition बाहर निकल गए. अब कुछ नहीं कर सकते हैं. I've seen lot of good people are not able to clear prelims क्योंकि उनका approach, and you have to give your best. बहुत दिमाग चलना होगा, स्ट्रेटेजाइज करना होगा, प्लान करना होगा. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, जरा सा भी नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हमें प्लान करना होगा. सीसैट इज वन एरिया आई एम ऑलरेडी थिंकिंग विद इन 2 वीक्स इस पर एक स्ट्रेटजी हम लोग डेवलप करके हम लोग उस पर काम करना हमें शुरू करना होगा. अदरवाइज साइकिल माइट रिपीट एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन. इज दैट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. चलिए, टेक केयर.